اقرأ وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host Dr. Jameel Rathore, and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the discipline and format of our program, we start our today's program, which consists of verse number 44 to 47 of Surah An-Naml of the 19th part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. صدق الله العظيم. Dear viewers, you were listening the recitation of Holy Quran, and we are feeling the grandeur and sweetness of the verses of Holy Quran.
And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting and breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. قال إنه صرح ممغد من قوارير. صرح ممغد من قوارير. صرح ممغد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Dear viewers, the second segment of our program has completed. And now we come to the third and final segment of our program. And this is very important segment of our program because in which we give you this lesson in several types. First, we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And just after this, we transliterate or romanize these verses, particularly for those who are unfamiliar with Arabic alphabets
as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation, and in the very end we give you the brief explanation of these holy verses. So let us start our final segment, and you are requested to keep watching this program and stay with us. قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. इन उर्दू आपने फरमाया, ये पानी नहीं, ये चमकदार महल है बिल्लोर का बना हुआ। उसकी आंखें खुल गईं, कहने लगी, ऐ मेरे रब, मैं आज तक जुल्म ढाती रही अपनी जान पर, और अब ईमान लाई हूं सुलेमान के साथ अल्लाह पर, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। In English, Suleiman said, "It is a soft courtyard set with glasses." The woman said, "O my Lord, I have wronged my soul, and now I submit with Suleiman before Allah, who is the Lord of the entire world." ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. In Roman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. In Urdu, और बेशक हमने रसूल बनाकर भेजा समूद की तरफ उनके भाई सालेह को कि इबादत करो अल्लाह ताला की, तो वो दो गिरोह बन गए और आपस में झगड़ने लगे। In English, and undoubtedly we sent towards Thamud their compatriot Saleh, that worship Allah, then henceforth they became two parties contending. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
इन उर्दू साले ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, क्यों तेजी करते हो बुराई करने में नेक काम करने से पहले? तुम क्यों नहीं बख्शिश तलब करते अल्लाह ताला से, शायद तुम पर रहम कर दिया जाए। In English, Saleh said, O my people, why do you hasten the evil before the good? Why do you not ask forgiveness of Allah? Haply you may be shown mercy. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. In Roman, قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. इन उर्दू कहने लगे, हम तो बुरा शुगून समझते हैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को। साले ने फरमाया, तुम्हारा बुरा शुगून तो अल्लाह ताला के यहां है, बल्कि तुम ऐसी कौम हो जो फितने में मुब्तला कर दी गई हो। In English, they said, we took a bad omen from you and from your companions. He said, your bad omen is with Allah. Rather, your people are lying in temptation. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुंचा। इन आयात में और आज के सबक में जो मीनिंग्स, जो उसके बयानात है, वो कुछ यूँ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के वाक़यात कुरान की इन आयात में बयान किए जा रहे हैं। सूरत अन-नम्ल में अक्सर वाक़यात सुलेमान अलैहिस्सलाम से बिलोंग करते हैं कि जब मलका बिल्कीस, जो कि सबा की मलका थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आती है फर्मा बरदार बनकर, तो वो फ़र्श को देखती है कि वो बिल्कुल चमकदार है। उसे यूँ महसूस होता है कि ये पानी है, और जिस तरह पानी चढ़ आता है तो हम आम तौर पर अपनी शलवार को पिंडलियों से ऊपर कर लिया करते हैं ताकि वो गीली ना हो। मलका बिल्कीस ने भी ऐसा ही किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये करने की ज़रूरत नहीं, ये पानी नहीं है, बल्कि ये तो शीशे का हमने फ़र्श बनाया है। लिहाजा वो इस आज़मत को देखकर वो और ज़्यादा सरनिगू हो गई, सरेंडर कर गई और अल्लाह और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। और वो कहती, असलमतु मआ सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मैं ईमान लाती हूँ सुलेमान पर अल्लाह के साथ। चुनांचे कुरान के इन अल्फाज से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम ईमान लाते हैं तो पहले हमें ईमान नबी पर लाना होता है। जब नबी के सामने हम सरेंडर कर जाते हैं, सबमिट कर जाते हैं, टोटल सबमिशन हो जाती है, डिवोट कर जाते हैं, और जब नबी को नबी मान लेते हैं, उन पर ईमान ले आते हैं, तो फिर नबी अल्लाह का खलीफा हुआ करता है। अल्लाह पर खुद ब खुद ईमान रासिख व मजबूत हो जाया करता है। चुनांचे मलका बिल्कीस ने ये कहा, असलमतु मआ सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सुलेमान पर ईमान लाती हूँ और सुलेमान के रब पर ईमान लाती हूँ। गुलामान मुस्तफ़ा भी जब ईमान लाते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। ला कलिमा नफ़ी है, ये नफ़ी हो रही है, लेकिन इस बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मौजूद है कि पहले इसका इकरार करोगे तो फिर अल्लाह के शरीक ना होने की नफ़ी का इकरार कबूल किया जाएगा। चुनांचे ये हमेशा से एक लाजिम मलजूम फार्मूला रहा है कि अल्लाह पर ईमान और नबी पर ईमान, जब दोनों पर ईमान लाया जाए, उसे रब समझकर ईमान लाया जाए जिसकी इबादत की जाती है, और उस पर ईमान नबी समझकर की जाए जिसकी ताज़ीम की जाती है। चुनांचे नबी का एहतराम, नबी की ताज़ीम इताअत कहलाती है, और अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम इबादत कहलाती है। इबादत फ़कत रब की जाती है और ताज़ीम नबी की इताअत की जाती है, इत्तिबा की जाती है। और ये भी याद रखिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला
कि इताअत भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन जब इत्तिबा की बात आती है तो फ़कत हम रसूलुल्लाह की करते हैं, इसलिए कि इत्तिबा उस अमल को कहते हैं जो किसी को देख कर किया जाए, उसके कामों को अपना लिया जाए। चुनांचे अल्लाह के काम तो है, मारता भी है, जिंदा भी करता है, बीमारी भी देता है, शिफा भी देता है, इज़्ज़त व ज़िल्लत भी देता है। लिहाजा हम अल्लाह की इत्तिबा नहीं करते बल्कि नबी अल्लाह की इत्तिबा करते हैं। और फिर आगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा इन आयात बयान किया जा रहा है कि वह अपनी कौम के पास तशरीफ़ ले गए और वो जो कौम समूद थी उन्हें कहा कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा आना ही बदशगुन है, न हम तुम्हें मानते हैं, न हम तुम्हारी लाई हुई किताब को मानते हैं, सहाइफ को मानते हैं, और ना ही हम तुम्हारे पैगाम को सुनने के लिए तैयार हैं। नतीजतन सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चूंकि तुम्हारे दिलों पर कुफ्र पड़ चुके हैं, लिहाजा अब गुमराही के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा है। तो मालूम ये हुआ कि आज हम दीन इस्लाम की तौहीद और तबलीग कर रहे हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के वो अंबिया जिनके हैरान कुल मुआजिज़ात उन्हें अता किए गए, बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनके दिलों पर कुफ्र पड़ गए थे। अबू जहल, अबू लहब थे, कौम समूद, कौम आद थे, जिन्होंने अंबिया किराम की हिदायत पर लब्बैक नहीं कहा, नतीजतन वह बर्बाद हो गए। आज हम में भी बर्बादी की मुख्तलिफ सूरतें सर उभार रही हैं, तो गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्या हम तालीमात नबवी से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, उसे फरामोश कर चुके हैं? ये सवाल है, इस पर गौर कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम पर हमें तफक्कुर, तअक्कुल, तदब्बुर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि